औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम respected students. Today is our second lecture of Civil Justice System of Pakistan. You know well, in our first lecture we discussed the judicial system of Pakistan regarding the court hierarchy. After that, we also discussed the most important definition portions, and after that I also told you that in the next lecture, inshallah, we will discuss the case laws. Firstly, in our today lecture, I would like to attract your attention towards section 9 of CPC, Code of Civil Procedure is the only statute act that regulates the civil procedure as well as civil adjudication system in Pakistan. Whatever is the nature of proceedings, generally you may say it may be cause of action related to labor laws or consumer protection, etc. But we have to follow the path that has been given in the Civil Procedure Code. Most important thing that you have to keep in mind is that although it is not necessary that the Code of Civil Procedure will be followed in stricto sensu, meaning thereby if the application of Code of Civil Procedure has been forbidden expressly in that statute, you may say that the Code of Civil Procedure will not be applicable. How? I will explain this thing by two simple examples of laws. One is our Family Court Act, other is the Punjab Rented Premises Act. In these acts, the Code of Civil Procedure is not followed expressly. Why? Its application has been forbidden, is barred. But very important thing is that the general principle of Code of Civil Procedure will be followed in these two acts. As you are seeing on this slide, the case law judgment
that is 2016 PLC, page 502. Section 9 of Civil Procedure has been explained in it. Any person having right had a corresponding remedy to institute suit in a court unless the jurisdiction of the civil court was barred. Civil court had been granted general jurisdiction to try all suits of a civil nature. Whenever the object of proceedings was the enforcement of civil rights, then civil court had jurisdiction to entertain the suit independently of any statute unless its cognizance was either expressly or impliedly barred. Final decision with regard to a civil right, duty or obligation should be that of the civil court. Maxim has also been given, that is you by jus, I by remedium, meaning when there was right, there was a remedy. My respected brothers and sisters, please listen to it very carefully. Any person who has any civil right, he has a corresponding remedy. Where there is a right, there is a remedy. When a person has a right, absolutely, he has remedy. In what cases he has remedy? All cases of civil nature where civil adjudication has to taken place. But for sake of understanding, it is also necessary that we should know the basic law regarding which the person has remedy. That law may be the labor law, rented premises, rent matter, guardian matter, or any other matter. You have also read the maxim, and very necessary thing that has been given in the explanation. A suit in which the right of property or to an office is contested is a suit of a civil nature. Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. अब सिर्फ दो चीज़ें जो आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखनी हैं। बेटा, सिविल राइट, रेमेडी, अभी सिर्फ इस चीज़ को अच्छे तरीके से या गौर से समझने के लिए हमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। वो दो चीज़ें बेटा कौन कौन सी हैं? राइट टू ऑफिस और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का राइट क्या है? समथिंग इज वैल्यूएबल, समथिंग हैज इट्स वैल्यू इन मनी इज अ प्रॉपर्टी। ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा, सब इसमें शामिल है। और दूसरा राइट ऑफिस।
इसको भी इंशाल्लाह ताला समझते हैं। अब ये जो केस लॉ की मैंने आपको बेटा एक छोटी सी मिसाल दी है, इसमें ये है असल चीज़ मेन कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर हुई, उसके हालात और वाक़यात क्या हैं। प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट in a civil court wherein he claims his promotion against the WAPDA department. Civil court returns the plaint. Subsequently, he files appeal against that returning of plaint. That appeal is also dismissed. Lastly, he files civil revision before the Honorable High Court, wherein his civil revision is accepted and case is remanded to the civil court. अब हैरत होगी इस बात की कि प्रमोशन कैसे चैलेंज हुई और सिविल कोर्ट कैसे ये फैसला सुन सकती है। तो इस पर गुजारिश ये है, हालात व वाक़यात कुछ ऐसे थे कि वापडा का एम्प्लॉई था, लेकिन वापडा ने कुछ और कंपनीज बना दी। जो पहले हमारा कंपनी का 1984 था कानून, उसके बाद फिर कंपनी एक्ट 2017 में मुतारिफ हुआ। ज़्यादा हम बारीकी में नहीं जाते, सिर्फ अहम बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई रूल्स वगैरह नहीं बताए थे प्रमोशन के। इस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सिविल कोर्ट ही इसका फ़ैसला करेगी। आप राइट टू ऑफिस को इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा। और दूसरी बात कि आपके किसी भी राइट की जब वायलेशन हुई तो अल्टीमेटली सिविल कोर्ट ने उसे डिसाइड करना है। दूसरा केस आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। अब इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। प्लीज़ कीप इन माइंड फॉर ऑलवेज these are the basic principles of civil law. We have studied the basics of civil law. We should also know the basic foundation. What is the purpose, object, and proceedings of civil law? Please read at this slide. Civil law was the law of omission and commission, and civil cases were always proved keeping in view the issues, and the parties had to lead their evidence in support of their pleadings and issues framed. In this case law, brief facts are that plaintiff files a suit in the civil court regarding damages. हालात व वाक़यात क्या हैं? वो कहता है कि जी कोई पब्लिक डेवलपमेंट का काम था, इम्प्रूवमेंट का, गवर्नमेंट का इदारा था। उसने वाटर कोर्स टाइप कोई कंस्ट्रक्टेड वर्क किया तो पानी की लीकेज हुई और उसकी ज़मीन और फसल वगैरह ख़राब हो गई। वो अब सिविल कोर्ट में आ गया, दावा खारिज हो गया। इस मौके पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये फरमाया, सिविल लॉ वाज द लॉ ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब सिविल लॉ तकाजा ये करता है कि आपका जो मौक़िफ़ है, जो आपकी प्लेंट है, काज ऑफ एक्शन है, फैक्ट्स हैं, उनको लिखें जो कानूनी तकाजा है, फिर उसे साबित करें। लेकिन इसमें मेन चीज़ एविडेंस कोई भी नहीं थी डैमेजेस की कि उसे नुकसान कितना हुआ और डिफेंडेंट्स का इलीगल एक्शन क्या था। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने एडवाइस भी दी वकला साहबान को कि आप सीनियर से पूछें
लोगों के अहम हकूक़ आप लोगों के पास होते हैं, एक रहनुमाई भी इसमें दी गई है। अब इस केस लॉ का आपको ब्रीफ फैक्ट्स बता दिए। असल चीज़ अब आपने ये देखनी है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, फिर एविडेंस भी उसी के हिसाब से लेके आनी है। प्लेंट में आपने क्या लिखना है, उसके बाद फिर आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये है हमारा केस लॉ 2014 का CLD पेज है 1646 सिंध का है, वही जो सिविल के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अक्सर औकात ये हमारे यहाँ होता है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ की जो प्रोसीडिंग्स है स्टे कब किन हालात में होती हैं और किन हालात में नहीं होती। जनरल प्रिंसिपल ये है कि सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स साइड बाय साइड चलती हैं, मामलात एक ही हों, लेकिन बाज़ औक़ात क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी जाती हैं। वजह रीज़न क्या है कि जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस मामले की हद तक का उन हालात में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टे होती हैं। इसमें भी यही हालात व वाक़यात थे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत दावा दायर हो गया, दूसरी साइड पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हैं, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये एक वर्डिक्ट दिया इन दोनों प्रोसीडिंग्स की हद तक। अब वही मेन बात, बेटा सिविल लॉ का जो मकसद है ना, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, कि आपका जो राइट है सिविल कोर्ट ने आपको वो राइट लेके देना है, जबकि क्रिमिनल लॉ का मकसद मुल्ज़िम को सज़ा देनी है। ये हैं इन दोनों कवानीन के मकासद। अमीशन कमीशन का आपको बताया। अब ये लास्ट है, सिर्फ 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा। PLD 1965 लाहौर 183। There are some sections of Code of Civil Procedure like Section 9, Section 96, 100, 141, 151, etc. Section 10, 11, 12 is also included in the very important sections of Code of Civil Procedure. बेटा जैसे शुरू में आप लोगों को बताया, जनरली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई होगा सिविल एडजुडिकेशन में, अनलेस एंड अनटिल इसकी प्रोहिबिशन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो इन दैट वेरी स्टैट्यूट। लेकिन 141 एक ऐसा ताकतवर सेक्शन है CPC का कि अगर एक्सप्रेसली भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन किसी दूसरे सिविल स्टैट्यूट में जहां सिविल एडजुडिकेशन होनी है वहां एक्सप्रेसली प्रोसीजर नहीं बताया गया, तो ऑनरेबल दैट ट्राइब्यूनल और दैट कोर्ट that is not basically a civil code that has to follow the procedure of CPC, but that court has no option but to follow the section 141। सादा तरीके से ये मिसाल समझ लें बेटा, जहाँ CPC की एप्लीकेशन रोक दी गई है वहाँ ऑनरेबल कोर्ट CPC इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा आपको, रेंट है, रेंट के केसेस हैं, गार्डियन के हैं या फैमिली के हैं, लेबर लॉज के तहत जो ट्रिब्यूनल बने गए हैं वो हैं, अगर वहाँ कोई इस तरह का इशू मामला आ जाता है कि एक सही प्रोसीजर सही समझ नहीं आ रहा नहीं है, इन हालात में भी जो सिविल लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं। कैसे, क्यों, वो सेक्शन 141 हमें बताता है। ये केस लॉ इसकी बाबत था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में फिर आप लोगों को मज़ीद आगे बताएंगे। आप ये केस लॉज पढ़ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसका PDF भी भेज देता हूँ, तसल्ली से देख लीजिएगा इनको ताकि आप लोगों को बेसिक्स समझ आ जाएं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।